Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your examination. So this video is specifically for ICMR Scientist B examination. So this video is like mainly focusing on how you can enhance the chances of your selection, right? Because we are having so many applicants and the seats are very low as compared to the applicants we are having in our examination. So what should be your strategy? And हमेशा हमें जो strategy follow करना रहता है वो तो हम करते ही हैं, but we forget about the don'ts. जो चीज़ें हमें नहीं करनी है वो क्या क्या चीज़ें हैं. सो दिस वीडियो विल फोकस ऑन द डोंट्स ऑफ दिस ICMR Scientist B examination. You have to avoid all these don'ts from your strategy list so that you will be having like 100% sure shot selection, right? So I have like provided so many in the thumbnail itself, like new books. बहुत बार आप नए बुक्स को रेफर कर रहे हो. You don't have any study plan, distractions बहुत ज़्यादा हैं, रिविजन कर ही नहीं रहे हो, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया जैसे हमेशा वो याद रहेगा. मॉक टेस्ट नहीं देना, ठीक है? सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग. सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के. सो here we go. What are the common mistakes which you all commit, right? So I will be providing you the top 10 mistakes of an aspirant during the preparation of this examination. So how to avoid these errors and how you can stay ahead of 90% of the aspirant. So this video will be a power pack, complete strategy plus smart preparation tips. So why most of the aspirants fail? If you talk about the like how many applicant, let's suppose if there are 100 applicant, so more than like 80 to 85 will fail. Only 10 to 15% will qualify. Why this is so? What is wrong with the person who is not at all qualifying the examination? They are also working hard, they are also preparing, but what is wrong with them? ठीक है? So they are having a wrong strategy, they are following a wrong template, they are following a like poor roadmap that will not reach them towards their goal, right? So you have to find a complete and a very efficient strategy that will take you towards your goal, that is to clear this written examination. Now lack of revision is also a culprit. If you study the different study designs of research methodology, you know that there are so many different parameters, parametric things, so many parameters like measures of association. So all the measures of association have a formula. So if you are not revising it properly or regularly, so you will forget it, right? So whenever one question will there related to relative risk, how you calculate the relative risk. So if you are not revising, you will be confused in between the options given in your question. So it is better to revise constantly. Now poor consistency, as your examination is shifted from 15th to the 6th of June, so you all be in a relaxed state. अरे चिल मारते हैं, आराम करते हैं, क्या पढ़ना है, एग्जाम तो एक महीने बाद है. बट 15th मई से कब 6th जून आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट? सो डोंट थिंक, आई नो दैट यू ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने कर चुकी है, एग्जामिनेशन 2 बार पोस्टपोन हो चुका है. सो एक थर्ड टाइम आपको और अटेम्प्ट करना चाहिए ये एग्ज़ाम, ठीक है? एक और चांस दो. इस बार डेफिनेटली पोस्टपोन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए. वी डोंट नो क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं, बट आप मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन है तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है. रोज़ पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो. नो एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग. Lack of knowledge that what is the exact syllabus of this examination, what is the pattern of examination, and which unit is holding highest weightage out of all the units mentioned in the syllabus. So you should know all about these things. Study smart, not just more. हर study में smartness ही तो ज़रूरी है. So you have to understand the examination first, right? You need to read the syllabus carefully. एक एक पॉइंट को पढ़ो और समझो.
सब टॉपिक्स नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। इसमें 3 हेडिंग्स में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूँ तो टॉपिक्स दे दिए गए हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोएथिक्स, ऐसे ऐसे करके सिलेबस दे दिया है। ये जो हमें 3 बुलेट्स में है, ये तो प्रीवियस ईयर का हमने देखा है, ठीक है, कि ये प्रोबेबली ये सिलेबस हो सकता है। एनालाइज PYQs, PYQs एनालाइज करना आपको होगी कि PYQs तो है ही नहीं। सो वॉट एवर आई हैव प्रोवाइडेड इन माई 2 to 3 videos, those are the most authentic PYQ source which you can practice. Now you have to identify high yield topics and also prepare subject wise roadmap as per the high weightage topics. Mistake 1, starting too many books. बहुत सारी बुक से पढ़ोगे, बहुत सारा टाइम जाएगा, you will have unnecessary confusion and incomplete preparation होगा. So you have to choose one primary source, ठीक है. Park is best book. Apart from that, you can refer the Anant Narayan for the communicable disease, non-communicable disease, epidemiological research, right? No proper study plan. You are not having a proper strategy that you will cover first unit in how many days, second unit in how many days. You are studying first unit, then you are going towards the fifth one, then you are picking the fourth one and left the second and the third. So you should have a proper targets, daily targets, and also weekly revision plan should be there. मॉक टेस्ट शेड्यूल कर लो, रोज मॉक टेस्ट देना है, मेरे चैनल का भी ले सकते हो या कहीं और से मिल रहा है तो उसे भी ले सकते हो. मॉक टेस्ट, सॉरी, मिस्टेक 3, रिविजन को इग्नोर कर रहे हो. यू नीड टू रिवाइज इट इन द इवनिंग. जो भी दिन भर में पढ़ा है, इवनिंग का टाइम जिसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं, थक जाते हैं दिन भर के ऑफिस स्कूल कॉलेज जो भी है. सो यू नीड टू रिवाइज इट प्रॉपरली इन द इवनिंग. वीकली रिविजन करो, मंथली रिविजन लास्ट में के लिए मत बचाओ, ये रोज रोज करो. और ये फाइनल रिविजन एग्जामिनेशन से पहले यूज फ्लैश कार्ड एंड शॉर्ट नोट्स. मॉक टेस्ट नहीं देने से एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा, स्पीड का पता नहीं चलेगा, टाइम की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी बाय गिविंग सो मेनी मॉक टेस्ट. ओवर यूजिंग मोबाइल एंड सोशल मीडिया. बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो अननेसेसरी चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई काम की चीज़ छोड़ के बाकी सब चीज़ों में ध्यान है. मैं यहीं पे बोल रही हूँ, करियर बनाना है, ठीक है, करियर बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा. देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर लाइक करियर. कोई भी शॉर्टकट नहीं मार सकते. स्मार्ट बन सकते हो, ठीक है, बहुत लेबोरियस बन के पढ़ रहे हो लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं पढ़ा, तो इन दैट वे यू नीड टू बी स्मार्ट. बट कोई भी हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. स्टडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. रटे जा रहे हो. एक जो वन ऑफ द ओल्ड एंड लाइक वेरी गुड थिंग दैट बोला जाता है, रटंतु विद्या घटंतु. It means whenever you are just studying without understanding the concept, there are high chances that you will forget in a day. ठीक है. सो अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखो और समझ जाओ. बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी को इग्नोर किया तो 50% चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है. तो अनोवा, पी वैल्यू, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, स्टडी डिजाइंस और भी जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई है सब कुछ पढ़ के जाना है. नॉट सॉल्विंग PYQs. 2 से 3 वीडियोस दिए हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली सोच के देखो क्या क्या आया होगा उस टाइम के क्वेश्चन पेपर में. वी आर नॉट हैविंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर बट वी आर हैविंग सम टॉपिक्स, ठीक है, जो हमें पता है कि उस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस करो उसी को. बर्नआउट एंड इनकंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो एक्यूरेसी, स्पीड, कुछ भी पे काम नहीं कर पाओगे. बर्नआउट होगा कि प्रिपरेशन नहीं है, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा. सो बेटर है कंसिस्टेंट रहो तो बर्नआउट्स नहीं होंगे. इग्नोरिंग प्रैक्टिकल एंड रिसर्च स्किल्स. ट्राई टू हैव लाइक, अगर आप इस तरह से सोच सकते हो कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जिसके पास पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने किसी लैब में काम किया है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ पे काम करती है या फिर किसी भी टाइप के कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के सर्विलेंस पे काम करती है, तो उसमें आप कुछ भी किए हो तो उससे रिलेटेड पढ़ो कि क्या ज़रूरी, ICMR कैसे वर्क करता है, ठीक है, ICMR कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ों पे फोकस करो. प्लस एक इम्पॉर्टेंट टिप, एप्टीट्यूड, GK एंड इंग्लिश को रोज़ 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है. सो दीज आर ऑल consistent revision, limited sources, mock test practice and strong basics and discipline, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने बताई है उसे अवॉइड करना है. सब्सक्राइब टू bio.com बिल्कुल करना है, भूलना ही नहीं है. एंड मुझे कमेंट करना है अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए तो.
Thank you so much for watching.